Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna.
Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Gajananam Bhutaganaधिसेवितां Kapittajando Bhayacharuvatam Umasutam Shokalina Sakarakam Namami Vighneswarapadankaram Parvanya Roso Bhakasvarava Prechami Tvam Dharma Samudacheta Yasyanischitam rohitam Shishasteyam sadimam tvam prapannam Kavim Puranamanushasidara Manoraniyam Samanusmaretya Sarvasya Bhagaramachintarupa Madityavarnam Tamasapparastat Pashyami devastavadevadehe sarvastatahudavisesasambha Brahmanamisham Kamalasyanastha Nishistya sarva Nurigasya sthita Aneka bahu Dayavakkanetra Pashyami Tvam Sarvatunantarupam Mantam Brahmadhyam Napunastavade Pashyami Vishwe Svaravishwarupa
केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदम् व्यावापृथिव्यो चिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽव्यन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलानि रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मराश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे सामेषिकेशतप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि हिता नितिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्नात्मा गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिपत्रे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् भित्तासि वेद्यम् च परं च धाम त्वया ततं ईशमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्ने वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो
नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या निकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषिततोऽसि सखेति मत्वा सर्वं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावहासार्थमशक्तिदोषि विहाय शय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतसमक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्यमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। श्री गीता जी का पाठ 8वां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अष्टमोऽध्याय। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं जीयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्म संविदा अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषस्ताधिदैवतं
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहवृथाम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मोक्त्वा कलेवरम् यत्र याति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् यदत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुज्यते मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारवचिन्त्यरूप स्मरेत्यवर्णं तमसोत्तरस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् वसुदेवसुतं देवं कान्तचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27/3/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा समय हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। देखो, सबका ये अनुभव है कि मैं हूँ। इसमें कोई संदेह होता है क्या? संशय होता है? मैं हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा होता है क्या कभी? पक्की बात है, मैं हूँ। ठीक बात है ना? तुम संदेह हो तो बोलो। नहीं। अच्छा, मैं हूँ, ये क्या चीज है? देखो, जड़ चेतन ही गांठी परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई, यद्यपि मृषा, यद्यपि झूठी बिल्कुल है, पर छूटनी कठिन हो गई है। तो जड़ चेतन की गांठ कहते हैं, वो गांठ क्या है कि मैं हूँ, यही है। मैं तो है जड़ और हूँ है चेतन, ये दोनों मिल गया, ये है जड़ चेतन की गांठ। मैं है प्रकृति का अंश, हूँ है परमात्मा का अंश। तो परमात्मा और प्रकृति का अंश दोनों मिला, ये जड़ चेतन की गांठ हुई। परमात्मा चेतन और प्रकृति जड़, तो ये है ग्रंथि। तो ग्रंथि भेदन की बात बड़ी आती है, ग्रंथि भेद हो जाए, ग्रंथि में छूट, जीव की ग्रंथि छूटती नहीं, इस वास्ते बार बार जन्मता मरता रहता है। अगर मैं से ये हूँ अलग हो जाए तो मैं नहीं हूँ ये, और हूँ ये मैं नहीं है, मैं हूँ नहीं हूँ। अगर ये दोनों विश्लेषण हो जाए तो ये जन्म मरण मिट जाए, तत्व ज्ञान हो जाए। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया। हृदय ग्रंथि का भेद हो जाए और संशय सब छिन्न भिन्न हो जाए, और सबके सब कर्म नष्ट हो जाए। खीयन्ते तासे कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा के दर्शन होने पर ये बात होती। तो परमात्मा का दर्शन कब होगा? कि जब मैं छूटेगा, निर्मम हो निरहंकार, निर्मम और निरहंकार हो जाएगा। तो अहं है, ये जड़ता है, क्योंकि महाभूतान अहंकारो बुद्धि रव्यक्तमेव इंद्रियाणि दशैकांच पंचचेंद्रिय गोचरा। ये क्षेत्र हुआ। इदम शरीरों को अंते क्षेत्रम, ये इदंता से है। ये एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, आप ध्यान दें। अगर ये बात कर ले तो आज ही ग्रंथि बदलने, आज ही, अभी नहीं तो थोड़ा समय लग जाएगा, परंतु ग्रंथि बदल हो जाएगा। जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, वो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। वो प्राप्ति है। अब मैं हूँ, ये क्या हुआ कि मैंपन है शरीर, इदं शरीरम। तो मैंपन को इदंता से देखो, सरल उपाय है, ये मार्मिक बात है। अगर आप कर सको, देख सको, तो मैं है, ये इदं है। इदं क्या?
ऐसे जो कहते हैं ये हिंदी में तो यह कहते हैं, संस्कृत में इसको इदं कहते हैं। भाषा वर्ग है, यह को चाहे इदं को हो, एक ही बात है। तो मैं को स्वयं अपना स्वरूप न समझे, मैं शरीर का स्वरूप है। इदं शरीरम कौनते क्षेत्रम और एतद्यो वेत्ति, ये मैं को जो जानता है वो है क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला। शरीर है जानने में आने वाला। जैसे मैं थंबा को देखता हूँ तो मैं थंबा नहीं हूँ, थंबे को देखने वाला हूँ, थंबा अलग है। तो थंबे की तरह ये मैं है, मैं से अलग हूँ देखने वाला। तो हूँ है ये, हूँ जो वाचक है ये सत्ता का वाचक है। तो अपना स्वरूप हुआ सत्ता और मैं हुआ जड़। जड़ ये सत, हूँ सत और मैं जड़। जड़ चेतन की गांठी पड़ी गई, ये जड़ चेतन की गांठ है। तो कठिनता क्यों हो गई कि मैं को तो हूँ मान लिया और हूँ को मैं मान लिया, ये एकता मान ली, यही गलती हुई है। इस मैं को है से हूँ से अलग नहीं करता, ये कठिनता है। तो इसकी सुगमता कैसे हो? तो थोड़ी कृपा कर ध्यान दें, इस मैंपन को, इस अहम को इदंता से देखेगी, ये अहम इदम है। संसार को तो इदंता से देखता है, परंतु मैं को इदंता नहीं, मैं देखने वाला हो जाता है। मैं देखने वाला हूँ, संसार दिखने वाला है। संसार और शरीर एक है। जैसे संसार दिखने वाला है ऐसे शरीर भी दिखने वाला है। धातु चीज से देखा जाए तो शरीर और संसार इसमें भेद नहीं है। क्षितिजल पाप का गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। तो क्षितिजल पावक गगन और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, क्षितिजल पाप का गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। तो क्षितिजल पावक गगन और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्वों का बना हुआ संसार है और 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। तो शरीर और संसार का भेद नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। अलग मान लिया, ये गलती हुई। तो अलग क्यों मान लिया कि शरीर को मैं के साथ मिला लिया, शरीर को संसार को अलग देख लिया अंगुली से, और इसका ही शरीर का ही अंश है ये क्षितिजल पावक गगन समीरा। ठीक बात है ना? तो इस मैंपन को इदंता से देखे, ये खास बात है। मैंपन दिखता है, मैंपन का भान होता है। हूँ है ना, हूँ ये तो है स्वरूप, सत्ता अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप सत्ता है। होनापन नित्य, नासतो विद्यते भाव, असत का भाव नहीं होता, ना भाव विद्यते सत। तो जो शरीर है वो असत है, नासतो विद्यते भाव, इसकी सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सता, जो हूँ है ये सत है, इसका अभाव नहीं होता। अभाव नहीं होता तभी तो अनेक जन्मों में जाता है। शरीर बदलते हैं मगर हूँ नहीं बदलता है। भूतग्राम से वयम भूतवा भूतवा प्रलयते, ये भूत समुदाय वही है जो पहले सर्ग में था। इसमें सर्ग होता है, प्रलय होता है, सृष्टि होती है, प्रलय होता है, सृष्टि होती है, प्रलय होता है। ऐसे ऐसे महाप्रलय होता है, महासर्ग होता है, महासर्ग होता है, महाप्रलय होता है। तो सब जीव जब लीन हो जाते हैं तब महाप्रलय होता है। और सब जीव जब जैसे सो जाते हैं और जागते हैं, तो सो जाते हैं जागते हैं, तो सोना हुआ प्रलय और जागना हुआ सर्ग। ऐसे सोते जागते सोते जागते सोते जागते ब्रह्मा जब सो जाते हैं,
1000 चतुर्युग का दिन होता है ब्रह्मा का, फिर उससे रात हो जाती है, तो रात में ब्रह्मा सोते हैं, तब ये प्रलय होता है। तो दिन होता है, ये सर्ग है, और सो जाते हैं। अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांतम, तो रात विद हो जाना, ये रात्रि और दिन को जानने वाले हैं। तो इनका सोना जगना होता है। इसको तो प्रलय और सर्ग, प्रलय सर्ग प्रलय, मन जगना सोना, इसको सर्ग प्रलय कहते हैं। ऐसे दिनों से ब्रह्मा की 100 वर्ष की उम्र होती है। 100 वर्ष की उम्र होती है तो ब्रह्मा लीन हो जाते हैं, उसको महाप्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जब लीन हो जाते हैं, फिर जितना दिन ब्रह्मा की सृष्टि रही उतनी बड़ी रात होती है, महाप्रलय होता है, महाप्रलय रहता है। और महाप्रलय के बाद महासर्ग होता है। जैसे सोते हैं जागते हैं और मर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म होता है। ये मनुष्यों की बात। तो जागरण सोना जागरण रात दिन हुआ और मरना दूसरा जन्म हुआ, ये महासर्ग प्रलय। ब्रह्मा जी का रोजना का सोना जागना सर्ग प्रलय, और महासर्ग क्या है कि ब्रह्मा का लीन हो जाना, फिर ब्रह्मा का उत्पन्न होना। जैसे भगवान की कमर से ब्रह्मा उत्पन्न होकर सृष्टि रचना करते हैं, तो वो महासर्ग और ब्रह्मा लीन हो जाए, महाप्रलय। ये महाप्रलय महासर्ग होता ही रहता है। जैसे मनुष्य जन्मता है, मरता है, जीता है, मरता है। परंतु ये जो जीव का जन्मना मरना है, ये कब तक है कि जब तक ये गुणों के साथ, प्रकृति के साथ, जड़ के साथ, शरीर के साथ अपनापन है। कारण गुण संगों से सदा सदी योनि जन्मसु, गुणों के संग से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। सतोगुण वाले ऊपर जाते हैं, रजोगुण मध्य में रहते हैं, तमोगुण नीचे चले जाते हैं, तामसा। और कारण गुण संगों से सदा सदी योनि जन्म, गुणों का संग होता है। अगर गुणों का संग न करे, या ये वेत्ति पुरुषम प्रकृति से गुणी स, प्रकृति में महासर्ग, गुणों में सर्ग प्रलय। और प्रकृति गुण है एक और पुरुष एक है, जो जगता है, सोता है, प्रलय होता है, सर्ग होता है, महाप्रलय होता है, महासर्ग होता है। पुरुष एक ही रहता है, वो सत्य है, वो है जो रहता है। और ये शरीर जो सृष्टि है सभी, ये प्रलय और सर्ग प्रलय सर्ग होता है। इसके साथ अपना मान लेने से जन्म मरण होता है। ये शरीर धारण करना क्या है? जैसे गीता ने कहा, वासान से जीर्णानि यथा विहाय, पुराने कपड़ों को छोड़कर जैसे मनुष्य नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे प्राणी शरीरों को छोड़कर, पुराने शरीरों को छोड़कर अन्य नए शरीरों को धारण कर लेता है। तो शरीर धारण करना इसलिए जन्म हो गया, शरीर को छोड़ दिया ये मरण हो गया। जैसे ब्रह्मा का महासर्ग महाप्रलय होता है, ऐसे जीव का भी महासर्ग महाप्रलय, मर गया, शरीर छूट गया और शरीर धारण कर दिया। जैसे स्थूल शरीर अपना है, ऐसे अपना सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व है। याद कर लेना, सूक्ष्म शरीर है, इतना कर लेना। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर 5 भूतों का है और सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 17 तत्व है। 17 तत्व ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण और मन और बुद्धि, दो ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। तो स्थूल शरीर भी बदलता है, सूक्ष्म शरीर भी बदलता है। कुत्ते को सपना आवे तो अपना कुत्ता ही देखेगा। जैसे स्थूल शरीर बदल गया तो सूक्ष्म शरीर भी बदल जाता है। जागृत अवस्था है, ये है स्थूल शरीर की, और स्वप्न अवस्था है सूक्ष्म शरीर की।
तो जैसे स्थूल शरीर में है ऐसा ही सूक्ष्म शरीर में देखता है। अब ध्यान दें, एक बात बताऊं इस बच्चे को समझने के लिए। आप जब कुंवारे हैं तो सपने में भी आप अपने को कुंवारा देखते हैं, और ब्याह हो जाता है तो कई दिन के बाद स्वप्न आता, स्वप्न में भी कुंवारा नहीं देखता, प्राय ब्याह हुआ देखता है। कभी कभी कुंवारे का सपना आ जाए, कभी से ज्यादा नहीं आता, एक दो बार आएगा फिर नहीं आएगा। फिर मैं ब्याह हुआ ऐसे ठीक है, सपने में भी ब्याह हुआ, जागृत में भी। तो जागृत में जो संस्कार है वही स्वप्न में रहते हैं। तो कुंवारा हूँ मैं, जागू तो ही कुंवारा हूँ, स्वप्नों में भी कुंवारा हूँ। और ब्याह होने के बाद जागृत में भी ब्याह किया हुआ हूँ, स्वप्न में ब्याह हुआ हूँ। तो स्वप्न से ही बदला है वो, स्वप्न में भी ब्याह देखता, ये स्वप्न से ही बदल गया, और स्थूल शरीर में बदल गया, भावना बदल गई, मैं ब्याह हुआ। तो ब्याह हुआ हूँ ये स्वप्न में जागृत में चलता है। तो स्वप्न आता है वो सतर तत्वों का शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। जागृत होता है ये पांच भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर है संसार स्थूल के साथ एक, और सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म संसार के साथ एक। एक सचित्र पावक गगन समीर स्थूल शरीर है, स्थूल सृष्टि है। तो स्थूल सृष्टि का अंश है ये स्थूल शरीर। और सूक्ष्म सृष्टि जो है पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राणी है, ये सूक्ष्म शरीर की समष्टि सब ले लो तो ये सबका सूक्ष्म शरीर हुआ। ये स्थूल शरीर सबका हुआ, वो सूक्ष्म शरीर हुआ। अब स्थूल सूक्ष्म तो कारण समझ में आते हैं। एक कारण शरीर और है। कारण शरीर किसका नाम है, ये थोड़ा बारीक है। वो ये है कि बुद्धि तत्वों में समझ में आती है बात। हर एक बात समझो तो बुद्धि है। तो सूक्ष्म शरीर में बुद्धि है सबसे तेज, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि तेज है। तो बुद्धि के बीच में समझ में आती है बातें। बुद्धि से अगाड़ी समझ में नहीं आता। बुद्धि आगे अंधेरा है, कुछ नहीं दिखता है। ये जो कुछ नहीं दिखता है ये कारण शरीर है। बुद्धि से अगाड़ी कुछ नहीं दिखता, तो कुछ नहीं दिखना है, ये अंधेरा, ये कारण शरीर है। तो सुषुप्ति, गहरी सुषुप्ति में कुछ याद नहीं। स्थूल में क्रिया होती है, सूक्ष्म में स्वप्न आता क्रिया होती है, और गाढ़ नींद में कोई क्रिया नहीं होती। वहाँ सुख से सोए हैं बस। तो सुख तो रहता है, और सोया था मैं, ऐसी बात। जागता है तब कहता है ऐसे सोया तो मेरे कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था ये कारण सही है। तो जानते हैं अगर नहीं जानते, ये अज्ञान है। अज्ञान में वासी मूल कारणम, अज्ञान है मूल कारण, वो है कारण शरीर। तो कारण शरीर है, वो सुषुप्ति में कारण शरीर में लीन हो जाता है ये जीव, तब कुछ भी पता नहीं, और सुख से सोया, शांति रही, पता कुछ भी नहीं था। अब ध्यान देना, एक बात बारीक और है। जैसे कुछ भी पता नहीं था, जाग कर कहता है। सुषुप्ति में तो कह सकता नहीं, कहने की सामग्री नहीं। जागने पर कहने की सामग्री आती है। कहने की सामग्री क्या है, वाणी वाग इंद्रिय है, और मन के साथ में बुद्धि है, अंतःकरण है। तब ये कहता है कि कुछ भी पता नहीं था। तो अंतःकरण भी नहीं था और बहिकरण भी नहीं थे, जबान भी नहीं थे, नेत्र भी, इंद्रिया नहीं थी, सबका अभाव था। तो कुछ भी पता नहीं था। कुछ भी पता नहीं था, ये तो पता था ना। जैसे हमारी बुद्धि में समझ में आ गई, साफ समझ में आ गई। कभी कहते हैं कि समझ में आई नहीं, अगर समझ में नहीं आती। कभी कहते हैं थोड़ी समझी, और थोड़ी नहीं समझी भी। ठीक, फिर सुनाओ, फिर समझूंगा।
तो नहीं समझ में आई, थोड़ी समझ में आई, और अब ठीक समझ गए, अब मैं ठीक समझ गया। तो बुद्धि समझ गया तो बुद्धि ने काम दिया, थोड़ा समझा तो बुद्धि ने थोड़ा काम दिया, और नहीं समझा तो बुद्धि ने काम नहीं दिया, तो बुद्धि का अभाव हुआ। तो समझने में, थोड़ा समझने में बुद्धि का भाव रहा, और न समझने में बुद्धि का अभाव रहा। ठीक है ना? ये बात ठीक समझ में आती है ना? बुद्धि का अभाव रहा। तो बुद्धि के अभाव को भी जानते हो कि नहीं आप? बुद्धि के भाव को भी जानते हो, बुद्धि की कमजोरी को भी जानते हो, और बुद्धि के अभाव को भी जानते हो। तो बुद्धि के भाव को, असली स्पष्ट को, और मंद पाने को और स्पष्ट पाने को जानते हो। ये आपका है स्वरूप, ये हूं का स्वरूप है। वो बुद्धि तक है अहंकार, बुद्धि अहंकार एक है, मन चित्त एक है। अहंकार बुद्धि में रह गया तो अहंकार लीन हो जाता है, मैं हूं ये लीन हो जाता है सुषुप्ति में। तो उस सुषुप्ति में आप स्वयं रहते हैं। तो इसके साथ मेरे को कुछ भी पता नहीं, तो कुछ भी पता नहीं, ये तो पता था ना। जैसे कोई घर में आदमी हो, और बाहर से कोई आदमी है घर में, हमको बाद में घर में है क्या, तो एक देता कि घर वाले अभी बाहर गए हुए, घर में नहीं है। तो घर में नहीं है, इसका अर्थ बोलने वाले के सिवाय नहीं है, पर बोलने वाले भी नहीं है। ध्यान दिया ना? बोलने वाला नहीं है तो कौन कहता है कि घर में कोई नहीं है? भाई बाहर गए हुए कोई नहीं है। ठीक है ना? तो सबके अभाव को जानने वाला तो है ना। तो इस बात से मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो सबके पते के अभाव को जानने वाला आप तो थे। ये थोड़ी बारी की बात है, समझ आ जाएगी। आप थोड़ा ध्यान दो तो समझ में आ जाएगी कि कुछ भी पता नहीं था, तो मैं सुख से सोया, तो आपका तो होनापन सिद्ध हो गया ना। मेरे को कुछ भी पता नहीं था, अब पता लगा, तो पता लगा ये जागृत हुई। अरे पता नहीं था ये सुषुप्ति हुई, जागृत हुई स्थूल शरीर की अवस्था, और कुछ भी पता नहीं है हुई कारण शरीर की अवस्था। तो कारण शरीर है जो कुछ भी नहीं था, पता नहीं था, ये कारण शरीर में था, अब पता लग गया। तो कारण शरीर है वो था, और कुछ भी पता नहीं, इसको जानने वाला आप तो थे। क्या समझ में आया? ठीक समझ आता है ना? आप नहीं थे तो कैसे कह, कुछ भी पता नहीं था, पता नहीं था ये कैसे कह दिया आपने? पता नहीं था, अब पता है। तो पता लगाने वाला जो मैंपन है वो सुषुप्ति में नहीं था, पता लगाने वाला जागृत में आया तो कहते कुछ भी पता नहीं था, अब पता लगता है। तो मैंपन तो वहाँ लीन हो गया था, अब जागृत हुआ है। तो मैंपन कारण शरीर का अंश हुआ। कारण शरीर वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप कारण शरीर के भी अभाव को जानने वाला, मानो स्थूल सूक्ष्म कारण, इन शरीरों का जो है शरीर है प्रकृति, और प्रकृति से अतीत तत्व को जानने वाला हूँ, वह सत्ता आपका रहना बना हुआ। तो वो आपका स्वरूप है, ये शरीर आपका स्वरूप नहीं है। तो स्वरूप नहीं है, ये जड़ आप नहीं हो, चेतन हो, सत्ता रूप से आप हो। तो सत्ता रूप में अपने में, ज्ञान रूप से अपने में स्थित हो जाए, सुख रूप आनंद में आपकी स्थिति हो गई, केवल सत्चित आनंद में, तब आपके असली ज्ञान हो गया। और जब तक अहंकार के साथ मिलते हो तब जर्जर ग्रंथि। तो सुषुप्ति में क्या कि अहं को अलग नहीं देखा, लीन हो गया। अब जागृत अवस्था में अहम है, ये अहम रह गया अलग। सुषुप्ति में मैं था अलग जानने वाला चेतन, तो जड़ हुआ अहम जो लीन हो गया था, अब चेतन में आ गया, जड़ प्रकट हो गया अहम, तब जागृत अवस्था हो गई। तो वो अहम है, इसकी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था होती है। सुषुप्ति अवस्था में अहम लीन हो जाता है, बुद्धि लीन हो जाती है। तो आपकी अवस्था नहीं रहती, परंतु अवस्था से अतीत तत्व है, आप भूत रहते हो, वो आपका स्वरूप है।
सत्ता स्वरूप और कारण शरीर से भी अतीत अलग, उसका भी प्रकाशक, ये आपका हुआ स्वरूप। अगर ये अहम से अलग आप जान लो तो अभी ग्रंथ वेदन हो जाए। भाव को जो प्रकाशित करता है, हाँ, वही स्वरूप, वो स्वरूप है आपका। ये कारण शरीर जो है, हाँ, ये कारण शरीर स्थूल शरीर के साथ में छूटता है, नहीं, कारण सूर्य बदलता है, कारण शरीर बदलता है, सूक्ष्म भी बदलता है, सूर्य छूटता है, स्थूल के साथ में सूक्ष्म भी छूट जाता है क्या? नहीं, सूर्य छूटता नहीं, बदल जाता है, बदल जाता है। हाँ, इंद्रिया वही रहती है, इंद्रिया वही रहती है, और कारण शरीर के साथ में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण वही रहते हैं, कारण के साथ में वो रहती है, कारण के साथ रहती है। जैसे गजेंद्र को हाँ, पूर्व जन्म का अनुशिक्षित ज्ञान, हाँ, उस गजेंद्र शरीर में प्रकट हुआ था, तो शरीर में प्रकट हुआ तो उसके सूक्ष्म शरीर में ज्ञान हुआ, ये सूक्ष्म ज्ञान हुआ, लेकिन कारण में जमा था क्या वो? कारण शरीर साथ में था, तो जमा कारण शरीर में ही था ज्ञान। हाँ, कारण शरीर में स्वभाव रहता है जमा, स्वभाव यानी अपनी आदत, तो स्वरूप ने उसको प्रकाशित कर दिया, स्वरूप ने वो प्रकाशित कर दिया, ये बात। तो स्वभाव सब कारण शरीर में रहता है, प्रकृति सुख कारण शरीर में रहती है। सीखा हुआ जो ज्ञान है, हाँ, जो पूर्व जन्म के जो कर्म है, वो कारण शरीर में जमा रहते हैं, वो कारण शरीर में जमा रहते हैं। तो कारण में जाए, कारण रहता है, कारण शरीर रहता है समष्टि प्रकृति में। जैसे स्थूल शरीर स्थूल संसार में रहता है समष्टि शरीर में, ऐसे ही कारण शरीर अपना कारण रूप प्रकृति उसमें रहता है, और भाव अभाव को जानने वाला जो स्वरूप है, वो स्वरूप में रहता है, उसका साक्षी है, वो साक्षी है, वो उसको भुगताता रहता है, वो भुगताता रहता है। तो इसको अलग मान रहे, अलग अनुभव कर रहे कि मैं ये नहीं जानना मैं नहीं हूँ, नहीं जानना माने इंद्रियां अंतःकरण के अभाव को जानने वाला वो मैं हूँ, ये जानने में आने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसा केवल प्रकाश चेतन ऐसा हूँ। तो वो क्या रहेगा? वो ज्ञान मात्र रहेगा। ध्यान देने की बात एक बारी को और बताता हूँ। तो ज्ञान मात्र रहेगा तो क्या मैं अपना स्वरूप जो कुछ भी नहीं जानता, मेरे कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो सबके ज्ञान के अभाव का जानने वाला था ना। तो अभाव जानने वाला ज्ञान है, ज्ञान रूप है। तो आप कोई कहते मैं ज्ञानी हूँ जब तो अहंकार के साथ मिल गया, और ज्ञान तो है, ज्ञानी नहीं है, अहंकार नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञान है, केवल ज्ञान दीप्ति, ये आपका स्वरूप है। अभी आपका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, अहम है वो आपका स्वरूप नहीं है। मैं हूँ है ये तो ज्ञान, और मैं है ये अज्ञान। तो मैं नहीं हूँ, मैं पड़ा नहीं है, केवल चेतन सत्ता, चेतन आनंद, सच्चिदानंद रूप सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, सूक्ष्म कोर कारण ये तो कुछ नहीं जानता, ये अज्ञान, अज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं है, और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, स्थूल सूक्ष्म भी नहीं है, अज्ञान भी कारण शरीर भी नहीं है, किंतु अपना सतरूप केवल प्रकाश ज्ञान स्वरूप हूँ मैं। ये बात। अब इसमें जो शंका हो बोलो, ये खास बात है। इस चेतन ग्रंथि भेद हो गया, जहाँ मैंपन से आप मैं को प्रकाशित, मैं के भाव और अभाव दोनों को प्रकाश करने वाला आप हुए। अहम ही कारण शरीर है। हाँ, अहम ही कारण शरीर है, कारण शरीर है, ये कारण शरीर में लीन हो जाता है। अज्ञान है कारण शरीर, कारण शरीर अज्ञान, तो अज्ञान में लीन हो जाता है अहम। इस बात कारण से अहम जागृत नहीं रहता है, लीन हो जाता है अज्ञान में। कुछ भी पता नहीं था इसमें, क्या अज्ञान में ख्याल में आ गया ना, ये बात है। बस वो ये अहम है, ये अज्ञान में है, अज्ञान में लीन होता है। अज्ञान का कार्य है ये महाभूतानी अहंकार और बुद्धि में होते, ये क्षेत्र है, अहंकार क्षेत्र है। इसमें निर्ममो निरहंकार, जन अहंकार रहित हुआ स शांति में अधिगच्छति, शांति में अधिगच्छति, निर्मो निरहंकार, ऐसा ब्राह्मी स्थिति।
निरहंकार हुआ तो ब्रह्म की स्थिति हुई। प्रकृति का अंत है अहम। हाँ, प्रकृति में हम है। महाभूतान्य अहंकारो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि उसे अहंकार इसी में भिन्ना प्रदर्शता। हर प्रकार की अपरा जीव है, वो अपरा जीव नित्य है, यह नित्य लीन होता है। देखो अहंकार लीन होता है, बुद्धि लीन होती है, पर आप लीन नहीं होते हो। तब अहंकार के अभाव को जानते हो, अज्ञान को भी जानते हो कि कुछ पता नहीं था। तो इदम शरीरम कहने वाला वो अलग है, वो अलग है, वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ है वो अलग शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्रज्ञ में चाहे माम विधि क्षेत्रज्ञ परमात्मा के साथ एक और क्षेत्र संसार के साथ एक। क्षेत्र तो संसार के साथ है और क्षेत्र परमात्मा के साथ है। तो क्षेत्र से आप अलग हो जाए तो क्षेत्र के साथ मिल जाए, जड़ क्षेत्र ग्रंथि भेदन हो गया। ये बात है। बोलो अब संदेह रहा हुई। स्वरूप का लक्ष्य स्वरूप की सहायता से किया जाए। हाँ बस स्वरूप की, और कोई उस और है ही नहीं वहाँ, सिवाय स्वरूप के और कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तो स्वयं की सावधानी स्वयं से ही करनी है। बस यही बात है। तो अहम से रहित मैं हूं, निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। निर्ममो निरहंकार सुम दुख स्वक्षम। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी हो संसार, दास कबीरा क्यों बन जाए जाके राम आधार। वो तो मैं मेरा सूरज राम जी में चला गया कि नहीं। मैं और मोर तोड़ से माया जही बस की ने जीव ने काया। ये बात अहम से मैं अलग हूँ, इसमें बुद्धि साथ में है क्या? है जी। अहम से मैं अलग हूँ, हाँ इसमें बुद्धि साथ में है क्या? ना, वहां नहीं, अभी तो बुद्धि साथ में है। अभी जागृत में मैं से मैं अलग हूँ, इसमें बुद्धि साथ है, पर सुषुप्ति में अहंकार के अभाव करता है, वहां बुद्धि साथ में नहीं है। तो ग्रंथि भेदन फिर समझने से, बुद्धि से समझने से ना, बुद्धि समझ छूटेगा तो ग्रंथि भेद होगा, बुद्धि साथ रहेगी तब जड़ता साथ रहेगी। बुद्धि और मैंपन है, ये एक ही चीज है। बुद्धि मैं नहीं, मैंपन मैं नहीं, फिर तो मैं का सत्ता जो मैं हूँ, ये सत्ता मेरा स्वरूप है। सत्ता केवल प्रकाश ज्ञान, जिस ज्ञान में भाव भाव दोनों प्रकाशित होते हैं, वो अपना स्वरूप है। नारायण नारायण नारायण